کراچی کا کچرا اٹھانے وسیم اختر میدان میں آ گئے۔ 100 روزہ پلان کے پہلے روز میئر نے خود جھاڑو اٹھا لی۔ اختیارات اور وسائل میں کمی کے باوجود شہر کو چمکتا دمکتا بنانے کا عزم۔ اختیار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، لیکن ذمہ داری ہے۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارا جذبہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کراچی کی عوام کو ڈیلیور کریں۔ وسیم اختر کے سیاسی جماعت سے رابطے بھی تیز۔ ANP اور PTI کے بعد جماعت اسلامی کے مرکز کا دورہ۔ شہر کے مسائل مل کر حل کرنے کے لیے پرعزم۔ جماعت اسلامی کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ تم ہٹا دو، تم آگے آ گئے، دھکا مارو پیچھے، یوں کرو یار، نہیں ایسے نہیں۔ میڈیا ٹاک کے دوران ڈاکٹر فاروق ستار کا کارکنوں سے نالا، پیچھے ہٹنے کی ہدایت دیتے رہے، پھر خود کارکنوں کو پیچھے ہٹا کر دکھایا۔ وفاقی حکومت نے IG سندھ تبدیل کرنے کے لیے سندھ حکومت کی سفارش مسترد کر دی۔ ذرائع کا دعویٰ، وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا، لیکن میاں نواز شریف صوبوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے۔ جانڈیوں کی تنقید۔ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں، مردم شماری نہ کروا کر ملک سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ 15 مارچ سے 15 مئی کے درمیان مردم شماری کو یقینی بنایا جائے، عدالت میں لکھ کر دیں ورنہ وزیر اعظم کٹہرے میں ہوں گے۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے ریمارکس۔ قطری خط دکھا کر جھوٹ کی داستانی سنائی گئی۔ نواز شریف بے گناہ ہوتے تو بار بار تقاریر نہ کرنی پڑتی۔ اب نئی ٹرسٹ ڈیڈ سامنے آئی ہے جسے منگل کو بے نقاب کر دیں گے، عمران خان کا دعویٰ۔ منی لانڈرنگ کے ثبوت کہاں ہیں؟ الزامات کے دریا میں ایک قطرہ بھی ثبوت کا نہیں نکلا۔ الزامات عدالت میں ردی ثابت ہوئے۔ جھوٹ بول کر عوام کو 7 ماہ سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لیگی رہنماؤں کا رد عمل۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے روابط بھی نواز شریف کو پیناما لیکس سے نہیں بچا سکتے۔ عمران خان کا ٹویٹ، نواز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کی پریس ریلیز جاری کرنا سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی میڈیا میں تبصرے شروع ہو چکے، شاہ محمود قریشی کی تنقید۔ LOC سمیت تمام معاملات پر بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مشیر خارجہ کا دورہ بھارت اور ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے ہے۔ دفتر خارجہ کی بریفنگ، بلوچستان حکومت عوام کے بجائے تخت رائے بند کی وفادار ہے۔ صوبے کا آئندہ بلوچستان حکومت عوام کے بجائے تخت رائے بند کی وفادار ہے۔ صوبے کا آئندہ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ بلوچ عوام کا جمہوریت پر اعتماد بحال کرائیں گے۔ بلاول بھٹو کا بلوچستان کے پارٹی عہدیداروں سے خطاب۔ بلاول ہاؤس لاہور میں رنگا رنگ بلوچ ثقافتی شو، فنکاروں نے سما باندھ دیا۔ کارکن تو کارکن راجہ پرویز اشرف اور اعتزاز احسن بھی جھومتے رہے۔ چمبا ہاؤس لاہور میں لیگی کارکن کی پراسرار موت کی گتھی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے سلجھا دی۔ سمیہ چودھری کی موت نشاور ادویات سے ہوئی، MNA بے قصور ہیں۔ لاہور میں جرائم پیشہ عناصر سے ارکان صوبائی اسمبلی بھی محفوظ نہیں۔ ڈاکو انعام اللہ نیازی سے موبائل فون اور نقدی لوٹ کر فرار۔ شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم پر شہریوں کو تشویش۔ جھنگ میں PP 78 کے ضمنی الیکشن میں نتائج کی آمد جاری۔ آزاد و بلوال مسرور نواز آگے، نون لیگ کے آزاد ناصر شیخ دوسرے نمبر پر۔ سی پیک کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان نیا زمینی اور بحری تجارتی راستہ بھی کھل گیا۔ صوبہ یونان سے 500 ٹن تجارتی سامان ٹرین کے ذریعے گوانگڈو روانہ، وہاں سے بحری جہاز سے کراچی لایا جائے گا۔
पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान बनास्पति एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। चेयरमैन एजाज मलिक का कहना है अवाम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते, SOPs बना लिए जाएंगे। ब्राजील से कोलंबिया जाने वाला तैयारा ईंधन खत्म होने के बाइस तबाह हुआ। पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। हादसे में ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों समेत 71 अफराद हलाक हुए थे। दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन। पाकिस्तान में मुहलिक मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। कराची में मरीजों की तादाद 7,500 से जायद हो गई। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में नवी 4 रोजा उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। बैरून मुल्क से भी अदीबों की शिरकत। उर्दू किसी सरहदी पाबंदी की मोहताज नहीं, ये वो दरिया है जो अपनी जगह खुद बनाता है। शुरका का खिताब। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण बिस्वी और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे मेयर कराची के 100 रोजा प्लान के पहले दिन से कराची में हर जगह कचरे के ढेर हैं और टूटी हुई सड़कों की मरम्मत के लिए मेयर कराची मैदान में आ गए हैं। 100 रोजा प्लान के पहले दिन शाह फैसल कॉलोनी में झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। सरबराह MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने भी कचरा साफ करने के लिए शहरियों से मैदान में आने की अपील कर दी। मजीद देखिए सैयद निशान अहमद की रिपोर्ट में। 100 रोजा सफाई प्लान, शहर की हालत सुधारने का बीड़ा उठा लिया मेयर कराची ने। वसीम अख्तर 100 रोजा मुहिम के पहले रोज घर से निकले तो पहले अदालत में पेशी भुगताई, जिसके बाद वो पहुंचे शाह फैसल कॉलोनी में, जहां झाड़ू लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर MQM लंदन और पाकिस्तान के कारकुनान के दरमियान बदमज़गी भी हुई। मेयर कराची का कहना है कि महदूद वसाइल और इख्तियारात के बाइस 3 अजला में काम का आगाज कर दिया, दीगर अजला में भी मसाइल की निशानदही कर रहे हैं। मेयर कराची का कहना था कि तमाम सियासी जमातों ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। जो लोग काम से रोक रहे हैं उनके चेहरे आपके सामने हैं कि ये लोग हैं जो हमें माजी में भी रोकते रहे, आज भी हमें ये आपके मसले हल करने के लिए रोक रहे हैं। हम आपके मसले हल करने जा रहे हैं, ये हमें उस काम से भी रोक रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उधर गुलशन इकबाल 13D में MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुहिम का इफ्तिताह ट्रैक्टर चलाकर और झाड़ू लगाकर किया। मीडिया से गुफ्तगू से कबल डॉक्टर फारूक सत्तार ने कारकुनों को पीछे हटने की हिदायत की, लेकिन वो न हटे, जिसके बाद उन्होंने डाइस से आकर खुद कारकुनों को पीछे हटाया। क्या हो गया? फटा हो गया? गिरने जाएगा। फारूक सत्तार का कहना था कि पहले 100 रोज में 15 से 20 UCs की हालत बेहतर करेंगे। 100 दिन मुकम्मल होंगे तो मखसूस UCs में मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि वहां बल्दियाती सहूलतें बेहतर होंगी। बल्दिया कराची के मुताबिक हुकूमत सिंध की जानिब से ताउन दरकार है, ताहम अब तक उनकी जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने शहर के मसाइल हल करने के लिए 100 रोजा एक्शन प्लान पर अमल का आगाज तो कर दिया, लेकिन उन्हें अभी कई चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस से मुतालिक देखते हैं ये रिपोर्ट। इख्तियारात महदूद, वसाइल भी महदूद, लेकिन मसाइल लामहदूद। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत मेयर कराची वसीम अख्तर ने अपना मनसब संभाल लिया, लेकिन पुराने निज़ाम के बरअक्स नए मेयर के ना इख्तियारात पहले जैसे हैं, ना वसाइल पिछले दौर से मुताबिकत रखते हैं।
वसीम अख्तर के पेशरो मुस्तफ़ा कमाल ने इख्तियारात और वसाइल के इस्तेमाल से शहर का नक्शा बदल डाला। तहम अब वसीम अख्तर को इख्तियारात के हुसूल में भी चैलेंजेस का सामना है और वसाइल में भी मसाइल दरपेश हैं। यही वजह है कि मेयर कराची हर एक से ताउन की अपील करते नजर आते हैं। आर्टिकल 140A की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस पे बात करें ताकि हमें इख्तियार मिले। अब इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारा जज्बा है, हम चाहते हैं कि हम कराची की आवाम को डिलीवर करें। दूसरी जानिब वसीम अख्तर को तकसीम शुदा मैंडेट का भी सामना है। यही वजह है कि 100 रोजा प्लान सिर्फ 3 अजला तक ही महदूद होकर रह गया। वसीम अख्तर को अदालतों में पेशियों पर भी हाजिरी से इस्तिस्ना नहीं। 100 रोजा सफाई मुहिम के पहले रोज ही अदालत में हाजिरी देनी पड़ी। मुस्तफा कमाल दौर की सड़कों की सफाई की मशीनरी हो या वाटर बोर्ड की गाड़ियां, ये वसाइल वसीम अख्तर के लिए सिर्फ कौब ही हैं। यही वजह है कि कचरा उठाने के लिए कभी रिक्शों तो कभी हाथ गाड़ियां मुतारिफ कराई जा रही हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि कराची के मसाइल को मिलकर हल करेंगे। पीटीआई, ANP और पीपल्स पार्टी के बाद जमात इस्लामी ने भी कराची के लिए जिद्दोजहद में साथ देने की यकीन दहानी कराई है। मेयर कराची के सियासी जमातों से राब्तों का सिलसिला तेज हो गया। वसीम अख्तर के इदारे नूर हक पहुंचने पर अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान ने इस्तकबाल किया। मीडिया से बातचीत में मेयर कराची का कहना था कि कराची के मसाइल पर MQM और जमात इस्लामी एक साथ हैं, मसाइल को मिलकर हल करेंगे। जमात इस्लामी ने कराची के लिए जद्दोजहद के लिए साथ देने की यकीन दहानी कराई है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आपके जो भी इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, हमारे साथ ताउन करें, हमारे साथ फील्ड में आए, हम मिल के काम करेंगे। वो हमें आइडेंटिफाई करें कि उनके इलाके में क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, वो हम पूरी कोशिश करेंगे जिस तरह अपने इलाकों में करेंगे उस तरह उनके इश्यूज को भी हम देखेंगे। वसीम अख्तर का कहना था कि 100 रोजा काम शुरू कर दिया है, कराची को अमन की बड़ी जरूरत है। इस मौके पर हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मेयर कराची वसीम अख्तर की भरपूर हिमायत करेंगे। शहर गंदगी का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। हम मुतामिल नहीं हो सकते कि हमारी सड़कें इसी तरह टूटी रहे, हमारे पास पे इसी तरह कब्जे रहे, इसी तरह से हम जो है वो हमें पानी नहीं मिल रहा हो, हमें बिजली नहीं मिल रही हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर पॉजिटिव जेस्चर्स के साथ आप तशरीफ लाएं तो हम आपको वेलकम करते हैं और हम ये चाहेंगे कि आप आगे बढ़कर काम करें। उन्होंने कहा कि MQM के पास अपने कारकुनान की सूरत में बड़ी तादाद में वर्कफोर्स मौजूद है और सफाई भी हो सकती है। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग फंक्शनल ने भी बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने और सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। सिंध में अपोजिशन जमातों की सफराई, अपोजिशन इत्तेहाद के लिए राब्तों का सिलसिला तेज हो गया। किंगरी हाउस में मुस्लिम लीग फंक्शनल की क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में MQM सरबरा फारूक सत्तार का कहना था कि सिंध में देही और शहर दोनों जगह जुल्म की इंतहा हो चुकी है। मकामी हुकूमतों के निजाम को बेहतर करने और इख्तियारात दिलाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। अब सियासत से बालातर होकर भी सोचना होगा और एक कौमी एजेंडा भी वज़ा करना होगा। सिंध के लिए एजेंडे में मकामी हुकूमत, बल्दियाती इदारों को मजबूत और मुस्तहकम बनाना। फारूक सत्तार का कहना था कि दुबई में जो कुछ हुआ वो माजी है, हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। अपने सियासी और कौमी एजेंडे से आगे बढ़कर सोचना होगा। वफाक से हिस्सा दिलाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। सिंध के अवाम के हुकूक बहाल करने के लिए मरकज से, वफाक से उनका हिस्सा दिलाने के लिए, कौमी तरक्की में, माशी तरक्की में उनका हिस्सा दिलाने के लिए भी। इस मौके पर फंक्शनल लीग के रहनुमा सदर अलाउद्दीन शाह राशिदी का कहना था कि सिंध महरूमी का शिकार हो रहा है। आज की मुलाकात में इत्तफाक हो गया है कि हक के लिए सड़कों पर भी आना पड़ा तो आएंगे। वफाक ने IG सिंध की तब्दीली के लिए सिंध हुकूमत की सिफारिश मुस्तरद कर दी, लेकिन क्यों, इसी पर बात करेंगे आज न्यूज ब्यूरो चीफ कराची रिफत सईद से। रिफत बताइएगा क्या वजह है कि हुकूमत ने IG AD ख्वाजा को तब्दील करना की सिफारिश की थी और वफाक की जानिब से इसे मुस्तरद कर दिया गया?
دیکھیں جو وفاقی حکومت سے جو انہوں نے درخواست کی تھی، تحریری درخواست تھی جو کی گئی تھی، اس پر وفاقی حکومت نے یہ کہہ کر اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے کہ 8 مہینے قبل خود حکومت سندھ کی سفارش پر جو ہے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو تعینات کیا گیا تھا. وہ اچھی شہرت کے حامل پولیس آفیسر ہیں، لیکن اس میں کیا وجوہات ہو گئیں. جو ہمیں اندرون خانہ پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ جو کراچی پولیس میں جو بھرتیاں تھیں اس پر تحفظات تھے یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت کو. اس کے علاوہ جو ایک پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما کے قریبی دوست ہیں اور نثار مورائی جو ہیں، ان کے گھر سے برآمد ہونے والے اسلحے کو ظاہر نہ کرنے کی شرط عائد کی گئی تھی، جو اے ڈی خواجہ نے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد یہ راہ ہموار کی گئی کہ انہیں تبدیل کر دیا جائے. لیکن وفاقی حکومت نے یہ درخواست ان کی مسترد کر دی اور یہ کہا کہ یہ آئی ٹی جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے. اسی وجہ سے جو مولا بخش چانڈی ہیں انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی پولیس افسران بعض افسران کو تعینات نہیں کیا جا رہا، لیکن اس بات سے جو وفاقی حکومت نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ارکان اسمبلی ہیں سندھ کے اور بعض اہم بیوروکریٹ ہیں انہوں نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور گو کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آئی جی سندھ کو تبدیل کیا جائے. لیکن وفاق کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے کہ صوبائی حکومت کی سفارش پر ہی اے ڈی خواجہ کو تعینات کیا گیا تھا، اس لیے اب انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ رفعت سعید اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مشیر اطلاع سندھ مولا بخش چانڈیو نے بھی وفاق کے اقدام پر شدید تنقید کی. لاہور میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا، لیکن میاں نواز شریف صوبوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے. اپوزیشن تو خلاف کرے گی بات، اپوزیشن کے اختلاف پہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ برداشت کریں نا، آپ حکومت میں ہیں، آپ کا کام برداشت کرنا ہے. لیکن آپ کے وہ 3-4 آدمی ہیں وہ جو مشرف کا بیڑا غرق کر کے ابھی آپ کے پاس آئے ہیں، وہ بھی سوائے گالیاں. آپ خان صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں بھی اختلاف رکھتا ہوں، لیکن گالیاں دینا اور جو برا بھلا کہتے ہوئے جیسے سپریم کورٹ سے باہر نکلتے ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے کوئی راکٹ ان میں داخل ہو گیا ہے اور وہ آ کر باہر پھٹ جاتے ہیں. یہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ میاں صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے. اور عابد شیر علی اور 3-4 وزراء ان کو لقب دینا ہی اچھا ہے. یہی میرے خیال میں میاں صاحب کی سیاست کا حصہ ہونا چاہیے. ایک تازہ ترین خبر آپ کو دیں. جھنکے حلقہ پی پی 78 کے ضمنی انتخاب میں 168 پولنگ سٹیشنز کے ابتدائی نتائج آ گئے ہیں. اب تک کے نتائج کے مطابق آزاد امیدوار مسرور نواز آگے، جبکہ نون لیگ کے آزاد ناصر شیخ دوسرے نمبر پر ہیں. 171 یہاں پر مجموعی پولنگ سٹیشنز ہیں، جس میں سے 168 کے اب نتائج آ چکے ہیں، اور ان ابتدائی نتائج کے مطابق آزاد امیدوار مسرور نواز آگے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ نون لیگ کے امیدوار آزاد ناصر شیخ دوسرے نمبر پر ہیں. ووٹس کی تعداد مسرور نواز کی زیادہ ہے اور وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں. آزاد حیثیت میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ نون لیگ کے امیدوار آزاد ناصر شیخ دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں. 168 پولنگ سٹیشنز کے ابتدائی نتائج آ چکے ہیں. ان نتائج کی تفصیل جانیں گے آج نیوز کے نمائندے وحید ملک سے. وحید، نتائج تو یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ شاید یہاں سے ہار جائے گی اور مسرور نواز کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ بالکل، جنگ کے حلقہ پی پی 78 میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج مکمل آ چکے ہیں. 171 پولنگ اسٹیشن کے، اس میں اہل سنت والجماعت کے حمایت یافتہ مولانا مسرور نواز نے 48,563 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل نون لیگ کے آزاد ناصر شیخ نے 35,468 ووٹ حاصل کیے ہیں. اب تک مجموعی طور پر تقریباً 12,000 کی لیڈ حاصل کر چکے ہیں. مولانا نواز پہلے نمبر پر ہیں اور 78 میں خالی ہونے والی سیٹ پر راشدہ یعقوب جو مسلم لیگ نون کی ایم پی اے تھی، اونہلی کے بعد سیٹ خالی ہوئی تھی. پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا اور شام 5 بجے تک جاری رہا. تاہم اس موقع پر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہوا. تاہم پولیس پولنگ اسٹیشن پر رینجر اور پاک فوج اور پولیس کی بھاری نفری موجود رہی. جی، آزاد امیدوار مسرور نواز 47,589 ووٹ لے کر اب کامیاب ہو چکے ہیں. حلقہ پی پی 78 کے ابتدائی نتائج جو آئے تھے، اب 171 پولنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آ چکے ہیں، اور آزاد امیدوار مسرور نواز نے 48,000 سے زائد ووٹس لیے اور کامیابی حاصل کی، جبکہ نون لیگ کے امیدوار آزاد ناصر شیخ دوسرے نمبر پر رہے اور 12,000 ووٹس کی سے یہ الیکشن ہار چکے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی، جنہوں نے کہا ہے کہ قطر تو کیا، ٹرمپ کا خط بھی آ جائے وزیر اعظم پاناما کیس سے نہیں بچ سکتے. حکومت کی طرف سے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا گیا. ان کو پتا ہے کہ لندن فلیٹس کے لیے کوئی منی ٹریل نہیں تھی. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے آصف نوید.
बनी गाला में मीडिया को ब्रीफिंग में इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ बेगुनाह होते तो इन्हें बार बार तकारीर की जरूरत न पड़ती। दुबई में तो इन्हें रकम मिली ही नहीं, फिर कौन सा सरमाया कतर गया। ट्रस्ट डीड भी फ्रॉड है। नकल करने वालों के पास अकल है, न ही इन्हें फ्रॉड करना आ रहा है। नकल में भी अकल चाहिए, फ्रॉड करना है तो कम से कम कुछ तो प्रैक्टिस हो। इनके पास ये जो प्रॉपर्टीज थी मेफेयर की, इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं थी साबित करने के लिए प्रॉपर्टीज। इमरान खान ने कहा कि सागदार की वजह से सालाना सैकड़ों अरब रुपया बैरून मुल्क जा रहा है। 2 साल में मनी लॉन्ड्रिंग से 750 अरब रुपया दुबई मुंतकिल हुआ। एमनेस्टी स्कीम्स के बावजूद टैक्स नहीं मिल रहा, फिर पेट्रोल कीमत बढ़ाकर बोझ अवाम पर लादा जा रहा है। अरबों रुपए के मालिक वजीर आजम के बच्चे बताएं कि ये रकम कहां से आई। ये जो शहजादे और शहजादियों की तरह ये रहते हैं, किधर से पैसा आता है? ये सारे टैक्स की चोरी करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि पानामा मुकदमा मुल्की मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों में ट्रस्ट डीड के फ्रॉड का पोल अदालत में खोलेंगे। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मुखालफीन ने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, असासे छुपाने और कर्जे माफ कराने का सबूत पेश नहीं किया। झूठ के सामने अदालती दीवार खड़ी है। खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुखालिफिन के हथकंडों के बायस सी पैक में 8 माह की ताखीर हुई, जबकि बड़े जोर से इल्जामात लगाए जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया, लेकिन अदालत में एक सबूत नहीं दिया गया। किकबैक्स और कर्जे माफ कराने का भी झूठ बोला गया। अदालत में 3 किताबें जो जमा कराएगी, इन पर एक लफ्ज नहीं बोला गया। सैलाब दुश्नाम है मेरे लिए, आपके लिए, उसके आगे एक ही दीवार खड़ी है उस झूठ के सैलाब के आगे, और वो अदालत। तो सबूत कहाँ है? अदालत में तो कोई सबूत नहीं आया। खुर्रम दस्तगीर ने मुखालिफिन को सच की तरफ आने की दावत देते हुए कहा, मुखालिफिन इल्जामात के सबूत भी सामने लाएं। इल्जामात के शोर में सच सुनाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा, हमारे दस्तावेजात में से तजादात ढूंढे जा रहे हैं, जबकि शरीफ खानदान और नवाज शरीफ के वालिद का ट्रायल किया जा रहा है। सिर्फ इल्जामात पे कहते हैं कि जी मुझे चूंकि शक है कि यहाँ करप्शन हुई है, भाई उस शक का भी तो आपने कोई एविडेंस देनी है ना। फाकी वजीर ने कहा कि हम अदालत में पेश हुए ताकि सच सामने आ जाए। एक पार्टी के सामने सारे दायरे कटहरे में हैं, जबकि यही पार्टी अपनी जुबान और अमल से पार्लियामेंट पर हमला हुई। उधर बिलावल हाउस लाहौर में सकाफत के रंग बिखर गए। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के कन्वेंशन में सब लीडर झूमते रहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बलूचिस्तान के कुछ सियासतदान चोर दरवाजे से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से डील कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी तरीकों के बजाय आवाम की ताकत से इख्तिदार में आएगी। बिलावल हाउस लाहौर बलोचिस्तान के रंगों में रंग गया। मौका था बलोच कन्वेंशन। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर अली मदद जतक ने बिलावल भुट्टो को इलाकाई पगड़ी पहनाई। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि बलूचिस्तान की हुकूमत तख्ते लाहौर की वफादार बनी हुई है। सी पैक के हक में पंजाब से बयान आते हैं, लेकिन सूबों के हक की बात नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में कि बलूचिस्तान सबसे पीछे नहीं सबसे आगे है। उन्होंने सी पैक और नेशनल एक्शन प्लान पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान में तहसील की सतह तक पार्टी तंजीमों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। 2018 में बलूचिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। कन्वेंशन में बलोची रवायती रक्स ने खूब रंग जमाया। फिर लोक मौसीकी शुरू हुई तो क्या कारकुन क्या लीडर सब झूमने लगे, गोया रक्स से दीवाना शुरू हो गया हो। बिलावल भुट्टो भी कारकुनान और ओहदेदारों में घुल मिल गए, जिन्होंने रहनुमाओं के साथ खूब सेल्फियां और तस्वीर बनाई। लाहौर से एक और खबर आपको दें, जहां सरकारी हॉस्टल में खातून सियासी कारकुन की पुरस्कार मौत का मुअम्मा ताहाल हल नहीं हो सका। वजीर कानून पंजाब का दावा है कि समिया चौधरी की मौत नशावर अद्वियात से हुई, जबकि अदाकारा किस्मत बेग के कातिलों की निशानदही हो चुकी है। वो जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। कामरान राजपूत की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाहौर के सरकारी हॉस्टल्स में खातून सियासी कारकुन समिया चौधरी की पुरस्कार मौत का मुअम्मा ताहाल हल नहीं किया जा सका।
पुलिस ने 90 अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं और तफ्तीश का सिलसिला जारी है, जबकि सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि खातून की मौत नशावर चीज से हुई है। उसकी मौत जो है वो किसी वायलेंस का नतीजे में या वो मर्डर नहीं है, ओवरडोज की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से उसकी जो है वो हलाकत हुई। तो अब ये राना सनाउल्लाह का कहना है कि अदाकारा किस्मत बेग का कत्ल केस हल हो चुका है और कातिलों की निशानदेही भी हो चुकी है। अदाकारा किस्मत बेगम का जो केस था वो पूरी तरह से वर्कआउट हो चुका है और उसके मुल्ज़मान जो हैं वो पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो चुके हैं। सूबाई वजीर कानून का कहना है कि पिछले चंद रोज के दौरान लाहौर में होने वाली तमाम वारदातों के मुल्जिमान पकड़े जा चुके हैं और चंद वाकयात की बुनियाद पर पंजाब पुलिस को नाकाम करार नहीं दिया जा सकता। कामरान राजपूत, आज न्यूज, लाहौर। राना सनाउल्लाह की सब अच्छा है कि कहानी अपनी जगह, लेकिन जमीनी हकायक कुछ और ही बता रहे हैं। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम से अरकान पंजाब असम्बली भी न बच पाए। हुकूमती रुकन पंजाब असम्बली इनाम उल्लाह खान न्याजी को लाहौर में डाकुओं ने मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया। शहरी बढ़ती वारदातों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। लाहौर में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों ने अरकान असम्बली को भी अपनी लपेट में ले लिया। मार रोड पर क्लब चौक के करीब डाकुओं ने हुकूमती रुकन पंजाब असम्बली इनाम उल्लाह खान न्याजी को इस वक्त मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया जब वो असम्बली इजलास में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। इनाम उल्लाह न्याजी के मुताबिक वाक़े के वक्त VIP मूवमेंट के बायस ट्रैफिक जाम थी कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उनसे मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। लाहौर के शहरी बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश में मुब्तला हैं। डकैती तो सरेआम हो रही है, कोई मतलब डॉल्फिन पुलिस जी लगी फिरती है, ये तो आप ही मतलब किसी गलियां महलिया ही लगे फिरते हैं। जब एक MP महफूज नहीं तो इस मुल्क में और किसकी जिंदगी किस तरह महफूज हो सकती है? ये जो ना हुकूमत पंजाब कोई कार्रवाई नहीं कर रही। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP सिविल लाइंस को फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार करने और वाक़े की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। और ब्रेक के बाद आगे देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की किस हरकत ने किया दुनिया को हैरान। और अब पाकिस्तान तुक्कों पर नहीं चलेगा। वेलकम बैक। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजीर आजम नवाज शरीफ से गुफ्तगू आलमी मीडिया पर छाई रही। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे अमरीकी पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली करार दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ के टेलीफोन पर अमरीकी नौ मुंतखब सदर का पुरजोश लहजा न सिर्फ पाकिस्तान और उसकी आवाम की तारीफ बल्कि देरीना तस्फिया तलब मसाइल हल कराने की भी पेशकश। आलमी मीडिया बातचीत को अमरीकी पॉलिसी में वाज़ेह मस्बत तब्दीली के तौर पर देख रहा है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, डोनाल्ड ट्रंप पहले पाकिस्तान पर तनकीद करते रहे, लेकिन अब उनकी गुफ्तगू तब्दीली का इशारा है। बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट के मुताबिक ट्रंप पहले से नवाज शरीफ को नहीं जानते, लेकिन ट्रंप को ऐसा लगा कि जैसे वो पाकिस्तानी वजीर आजम को पहले से जानते हैं। दूसरी तरफ भारतीय अखबारात ने बातचीत को तनकीद का निशाना बनाया और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते रहे। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गैर मामूली भरपूर जज्बात के इजहार ने दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। हुकूमत ने इसका भरपूर खैर मकदम किया, जबकि पाकिस्तान के मुखालिफिन को गालिबन शदीद झटका पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के गैर मामूली और शानदार मुल्क होने जैसे कलमात अदा किए और कहा कि पाकिस्तान का दौरा करना उनके लिए खुशी का मुकाम होगा। पाकिस्तान नौ मुंतखब अमरीकी सदर की जानिब से दरीना मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने के अज़म का खुशाइंद करार दिया है। He had said this thing earlier also in the context of Kashmir that he would like to play a role, which was also welcomed by Pakistan. डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वजीर आजम ने उन्हें दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। हुकूमत को तवक्को है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने दौरा किया तो उससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बहुत सारे हमारी उनके साथ चीजें हैं जो मुश्तरका बुनियादों पर चल रही हैं और अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो अच्छे दोस्त रहे हैं हमेशा से, तो उनके दौरे से मैं समझता हूँ कि इन ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। तजियाकारों का कहना है कि हुकूमत को वजीर आजम और डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता और नौ मुंतखब अमरीकी सदर के पाकिस्तान के लिए अच्छे कलमात को संजीदगी से लेना चाहिए। एक ऐसा सदर जो एक बड़े मैंडेट के साथ आया है और धड़ल्ले के साथ आया है
اور کہتا ہے کہ میں نے دھڑلے کے ساتھ پالیسی سازی کرنی ہے. اگر وہ پاکستان کے بارے میں شروع میں ہی چند ایک اچھی باتیں کہہ رہا ہے تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح صدارتی الیکشن غیر متوقع طور پر جیتا، اسی طرح پاکستان کے بارے میں ان کے دو ٹوک دوستانہ جذبات کے اظہار سے دونوں ممالک کے درمیان دوریاں کم ہونے کی امید ہے. پاک امریکہ تعلقات کے بعد اب بات کرتے ہیں مردم شماری کیس کی، جس میں حکومت آج بھی حتمی تاریخ نہ دے سکی، لیکن عدالت عظمیٰ نے 15 مارچ سے 15 مئی کے دوران مردم شماری کی تاریخ دے دی. جبکہ چیف جسٹس کہتے ہیں 7 دسمبر تک مردم شماری کرانے کے عمل سے متعلق تحریری طور پر آگاہ نہ کیا تو وزیر اعظم کٹہرے میں ہوں گے. مزید دیکھیے فیصل رضا خان کی رپورٹ میں. مردم شماری نہ کرائی گئی تو وزیر اعظم عدالت کے کٹہرے میں ہوں گے. وزیر اعظم کو بلانے کے علاوہ عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں. 7 دسمبر تک حتمی تاریخ دیں ورنہ وزیر اعظم کو عدالت میں بلائیں گے. یہ ریمارکس ہیں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے. سپریم کورٹ میں مردم شماری میں تاخیر کے حوالے سے 3 رکنی بینچ نے از خود نوٹس کی سماعت کی. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے حکومت کی جانب سے مردم شماری کرانے کی حتمی تاریخ نہ دینے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ مردم شماری کے حوالے سے حکومت کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. مردم شماری نہ کروا کر پورے ملک کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو یہی سٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ملکی پالیسیاں ہوا میں بن رہی ہیں. عوام کی حقیقی تعداد کسی کو معلوم ہی نہیں. مردم شماری ہوگی تو نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں گی. مردم شماری کے بغیر انتخابات ملک کے ساتھ مذاق ہیں. مردم شماری نہیں کرانی تو آئین میں ترمیم کر لیں. اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ عدالت اپنی مرضی سے تاریخ دے دے. مردم شماری کرا دیں گے، جس پر چیف جسٹس نے 15 مارچ سے 15 مئی کے درمیان مردم شماری یقینی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ تحریری طور پر متعلقہ دورانیہ میں مردم شماری کا عمل مکمل کرانے کا تحریری جواب دیں. 7 دسمبر تک حتمی تاریخ دیں ورنہ وزیر اعظم کو عدالت میں بلائیں گے. سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 7 دسمبر تک ملتوی کر دی.